Hello, welcome to my YouTube channel Learning Leaders. In this video, we will explore what mental health and mental hygiene mean, why they are important, and how education can promote psychological well-being. Have you ever noticed a student who is intelligent but struggles to concentrate, feel anxious, and suddenly loses interest? So, marks can measure intelligence, but what about mental health? In this video, we are going to explore the mental health and hygiene. Mental health. Mental health is a state of well-being. This is the definition given by WHO, a state of well-being in which every individual realizes his or her own potential, can cope with the normal stresses of life, can work productively and fruitfully, and is able to make a contribution to her or his community. It's a state of maturity, positive human strength, and emotional intelligence. So this is the definition given by World Health Organization. Mental health is basically a state of well-being. It is a result, and mental hygiene is a cause. The practice, mental hygiene, the science of keeping oneself, living areas and working areas neat, clean and hygienic to prevent disease and illness. So, mental health is a state of well-being where it can promote emotional stability. Emotional stability को प्रमोट करता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट अप करता है, ability to cope with problems. To cope up with problems. And mental hygiene, it manages the stress. स्ट्रेस को मैनेज करता है. एक्सप्रेसिंग इमोशन, इमोशन को एक्सप्रेस करता है. इमोशन, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं स्लीप का एग्जाम्पल लेते हैं. सो मेंटल हाइजीन इज स्लीपिंग ऑन टाइम. एंड व्हाट इज मेंटल हेल्थ? that it can promote active mind, emotional balance, good mental health. Another example, ki eating habits. So washing fruits and hands before eating is the mental hygiene, but it can lead to proper digestion, fewer stomach infection. So this promote mental health. Theoretical framework, Jahoda, criteria 1958 from the book Current Concept of Positive Mental Health. So this framework is very important. Mary Jahoda talks about पॉजिटिव मेंटल हेल्थ. इन्होंने पॉजिटिव मेंटल हेल्थ की बात की है, जिसमें पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंटीग्रेशन, ऑटोनॉमी, परसेप्शन ऑफ रियलिटी, इन्वायरमेंटल मास्टरी. सो पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ क्या होता है? ये बेसिकली होता है लाइकिंग वन सेल्फ, लाइकिंग वन सेल्फ और हैविंग सेल्फ स्टीम, हैविंग सेल्फ esteem. Example, a student fails in one exam but say, I didn't perform well this time but I can improve. तो जो सेल्फ एक्सेप्टेंस है इसमें वो इम्पॉर्टेंट है. ठीक है कि एक एग्जाम में अगर वो फेल हो गया है तो वो नेक्स्ट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेगा. सेकेंड इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. दिस इज डिजायर टू ग्रो, टू लर्न, desire to grow, to learn and to improve oneself. For example, teacher जो है वो workshop attend करती है, ठीक है, and saying जो है instead of saying कि I have been teaching for 20 years, I don't need to learn. So growth and development is very important. Integration is emotional balance. Emotional balance, or you can say manages stress. A student feel anxious before exam
बट स्टडीज रेगुलरली. सो दिस इज द इंटीग्रेशन. उसको डर लग रहा है लेकिन फिर भी वो अपनी स्टडी को जो है वो कंटिन्यू कर रहा है. ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी इज द एबिलिटी टू मेक डिसीजन इंडिपेंडेंटली एंड रेजिस्ट peer pressure. So friend pressure to cheat in exam, ठीक है, but a student refuses to cheat and say I'll do it myself honestly. So this is the autonomy. Autonomy is ability to make decision. Ability to make decision. Perception of reality. Perception of reality is seeing situation realistically, not through fear, fantasy. ठीक है. Student doesn't get selected for competitive exams and think I need more practice. वो उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, पर उसको ये पता है, वो रियलिटी को एक्सेप्ट करता है कि मुझे जो है और ज़्यादा प्रिपरेशन की ज़रूरत है. मेरे कहीं ना कहीं जो है वो लैक ऑफ नॉलेज है जिसकी वजह से मैंने क्लियर नहीं किया है. I need improvement. Environmental mastery is effective adjustment. Effective adjustment. Adjustment. So, for example, working parent है तो जो है वो अपना जॉब भी मैनेज करेंगे, फैमिली की भी टेक केयर करेंगे एंड बैलेंस टाइम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बोथ. सो दिस इज एनवायरमेंटल मास्टरी. ये हमने पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के पॉइंट्स पढ़े. नेक्स्ट इज द 4 पिलर ऑफ फंक्शनिंग माइंड. सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ फंक्शनिंग माइंड. सो फर्स्ट वन इज रियलिटी कॉन्टेक्ट, impulse control, self esteem, positive thought. Reality contact, this is seeing things as they are. ठीक है, जैसा है वैसे ही देखना. A realistic appraisal of one's own emotion, reaction and abilities essential for stability. So for example, स्टूडेंट ने मार्क्स जो है वो स्कोर लेस किया है और ही थिंक दैट आई डिडंट प्रिपेयर वेल दिस टाइम. तो उसने जो चीज़ जैसी थी वैसी ही उसको जो है देखा है. सेकेंड इज इम्पल्स कंट्रोल. effective regulation of behavior and impulses, the ability to adjust effectively with the environment. Okay, controlling immediate reaction, इसका मतलब है controlling immediate reaction. For example, someone gets angry during argument but take a deep breath. तो जो है इम्पल्सिव हो गया, गुस्सा हो गया, पर उसने एक लंबी गहरी सांस ली और उसके बाद जो है अपने आप को कंट्रोल कर दिया. सो इट इज इफेक्टिव रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर. सेल्फ एस्टीम, द इवैल्यूएटिव कंपोनेंट ऑफ सेल्फ कॉन्सेप्ट, अवेयरनेस ऑफ वंस ओन फीलिंग, वैल्यूज एंड वर्थ. दिस इज बेसिकली सेल्फ वर्थ. सेल्फ वर्थ इज सेंस ऑफ सेल्फ, sense of self-worth. A student is not good at a sport but says I may not be athletic but I am good at academic. जो है वो स्पोर्ट्स में गुड नहीं है पर ही इज इंटेलिजेंट. सो उसने ये चीज़ जो है अपने आप को वैल्यू दी कि हाँ ठीक है, मैं स्पोर्ट्स में ठीक नहीं हूँ लेकिन मैं एकेडमिक्स में अच्छा हूँ. फोर्थ वन इज पॉजिटिव थॉट्स. The directional qualities of mental activity health depend on whether thoughts are directed in positive or negative way. So the directional quality of mental activity is leading to positive behavior. It is basically optimistic thinking. Optimistic thinking, or you can say hopeful mindset. So
So these are the 4 pillars of functioning minds. Recognizing the indicators of poor mental health. So these are the indicators of poor mental health. किसी का mental health poor है तो उसके क्या indicator हैं? Behavioral indicator देखेंगे, physical indicator देखेंगे, emotional and social indicator से हमें जो है idea होगा. So behavioral indicators क्या है? Haphazard and disorganized daily routine. रूटीन जो है वो हैफेजार्ड होगा, शॉर्ट टेम्पर्ड इरिटेटिंग बिहेवियर होगा, एंगर एंड अग्रेशन होगा, रेस्टलेसनेस होगी, excessive use of drugs and alcohol. So these are the behavioral indicators. And physical indicators are increased और poor appetite, indigestion है, ठीक है, irregular sleeping patterns हैं जिसको हम insomnia कहते हैं, narcolepsy, abnormal फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, ब्लड प्रेशर हाई होगा, पैल्पिटेशन बहुत तेज पल्स रेट होगी, ठीक है. सो दीज आर द फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ पुअर मेंटल हेल्थ. इमोशनल एंड सोशल इंडिकेटर्स, एंजाइटी एंड वरी, नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ एंड अदर, खुद के लिए भी नेगेटिव एटीट्यूड है और दूसरे के लिए भी, बहुत गुस्सा होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को सोचना, ओवर थिंकिंग करना, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, पुअर इंटरपर्सनल आपस में जो है जो रिलेशनशिप होगी वो भी बहुत पुअर होगी, विड्रॉल फ्रॉम रिलेशनशिप, वो जो है ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर पाएगा अपने रिलेशनशिप्स को भी, विड्रॉ की जो है सिचुएशन है. दिस इज असेसमेंट मेथोलॉजी, द 15 आइटम स्केल. ये जो है असेसमेंट मेथोलॉजी है जिसमें 15 आइटम स्केल हैं, सैम्पल क्वेश्चन आइटम्स हैं. इसमें जो है आपका अग्री को 3 पॉइंट, अनसर्टेन 2, डिसअग्री 1. सो जिसका स्कोर जो है 36 to 45 है उनका गुड मेंटल हेल्थ है, 26 to 35 फेयर मेंटल हेल्थ, 15 to 25 इज पुअर मेंटल हेल्थ. सो दिस इज द पॉजिटिव 15. ये जो है जहोदा ने 1958 में पॉजिटिव मेंटल हेल्थ के 15 आइटम स्केल दिए थे, ठीक है, आइटम स्केल टू क्लासीफाई इंडिविजुअल्स इनटू गुड, फेयर एंड पुअर मेंटल हेल्थ, ठीक है, इसमें क्लासिफाई करने के लिए. दिस इज द साइकोसोशल मॉडल एंड इन्वर्टेड pyramid ऑफ इंटरवेंशन. सो साइकोसोशल मॉडल मेंटल हेल्थ बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है बोथ साइकोलॉजिकल फैक्टर को भी एंड सोशल फैक्टर को भी. सो साइकोलॉजिकल फैक्टर जो है, साइकोलॉजिकल फैक्टर डील करते हैं हमारे किससे, थॉट से, ठीक है, क्या सोच रहे हैं हम, हमारे इमोशंस क्या हैं, हमारा बिहेवियर क्या है, ठीक है. एंड सोशल फैक्टर क्या है हमारा, फैमिली, स्कूल, सोसाइटी, कल्चर. इन्वर्टेड पायरामिड बेसिकली इसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स जो हैं उनको बेसिक सपोर्ट की ज़रूरत होती है और जो मिनिमम फ्यूअर होते हैं दे नीड इंटेंसिव केयर. सो दिस इज एन इन्वर्टेड पायरामिड ऑफ इंटरवेंशन. लेवल 1 में जो है हमारा पूरा इंटायर स्कूल कम्युनिटी होगा. ये क्या प्रमोट करेगा, इसका एम क्या है, टू प्रमोट मेंटल वेलबींग, ठीक है. सो जैसे कि जो है मॉर्निंग असेंबली में प्रोवाइडिंग गुड थॉट्स फॉर द डे. एंड लेवल 2 इज ऑल स्टूडेंट एंड टीचर. ऑल स्टूडेंट एंड टीचर, ये क्या, इनका एम क्या है, मेंटल हेल्थ, नॉलेज, एटीट्यूड एंड बिहेवियर. बेसिकली ये डील करते हैं करिकुलम इंटीग्रेशन से. सो स्टूडेंट एंड टीचर दे आर mental health, knowledge, attitudes and behavior, they are related with curriculum integration. Level 3rd is targeted support, psychosocial problems, student needing additional help. कहाँ से मिलेगी इनको additional help, जो है काउंसलर से, टीचर से, peer mentor से. so they are the targeted supports. Level 4 is specialized care, severe problem, disorder, professional management, school doctors. so they are the स्पेशलाइज्ड केयर. अगर इनको ज़्यादा कोई किसी को मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम होती है, सो दे गिव द स्पेशलाइज्ड केयर टू द स्टूडेंट और टीचर. स्टेक होल्डर्स रोल्स इन द इकोसिस्टम. सो दे आर द स्टेक होल्डर्स, पेरेंट्स, टीचर्स,
specialized educator and administrator. So role of counselor with stakeholder क्या है? Parents education, networking, academics, planning, career awareness programs. So these are as per the parents requirement. And teacher, classroom guidance, learning style assessment, identifying at risk student, academic support. स्पेशलाइज्ड एजुकेटर क्या प्रोवाइड कराएंगे? इंडिविजुअलाइज्ड एक्शन एजुकेशन प्लान, रेमिडिएशन, रेमिडीज प्रोवाइड कराएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे किससे? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से. सो पेरेंट्स से क्या कैसे जो है काउंसलर का रोल है. एंड एडमिनिस्ट्रेटर, बिहेवियरल मैनेजमेंट प्लान, क्या बिहेवियर मैनेजमेंट प्लान है वो बनाएंगे. स्कूल वाइड नीड्स असेसमेंट, डेटा एनालिसिस, एंटी बुलिंग पॉलिसीज. तो जो बुली करते हैं उसके लिए जो है एंटी बुलिंग पॉलिसीज भी जो है वो क्रिएट करेंगे. सो दीज आर द रोल्स ऑफ स्टेक होल्डर इन द इकोसिस्टम. First response, helping a student, process flow for educator to provide a safe nurturing climate. So helping a student, so this is the first response कि जो है एजुकेटर कैसे प्रोवाइड कराएगा सेफ एंड नर्चरिंग क्लाइमेट. सो इसको कैसे, पहला जो है आइडेंटिफाई करेगा प्रॉब्लम को. सो फर्स्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, जो है उसको आइडेंटिफाई करना. देन लिसन टू द चाइल्ड, एक्टिव लिसनिंग, बच्चे को सुनेगा. देन उस पर फैसिलिटेट पॉजिटिव चेंज, गोल सेटिंग बनाएगा कि उसमें क्या चीज़ जो है पॉजिटिव चेंज हमको लेके आना है. देन ब्रेन स्टॉर्म अल्टरनेटिव, सो वर्क टुगेदर ऑन सोल्यूशन. फिर इनको जो है सबसे बातचीत करके जो है एक सोल्यूशन पे आएंगे. देन मोटिवेशन, इनकरेज पॉजिटिव चेंज, मोटिवेट करेगा उसको जो है स्टूडेंट को पॉजिटिव चेंज के लिए. ठीक है. दिस फोकस इज टू प्रोवाइड सेफ, secure, nurturing climate where the child can develop healthy coping skills. So ये पूरा हमारा जो है स्टूडेंट हेल्दी कोपिंग स्किल्स को डेवलप करे, ये मेन फोकस है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द बेसिक काउंसलिंग स्किल्स. इसमें क्या क्या होता है? पहला हमारा है पैराफ्रेजिंग. ठीक है. पैराफ्रेजिंग बेसिकली ये होता है कि जो है लाइक लेट मी चेक इफ आई अंडरस्टूड यू करेक्टली. ठीक है, इसको हम लिख लेते हैं. लेट मी चेक इफ आई अंडरस्टूड यू करेक्टली. मीन्स कि पहले जो भी जो है क्वेश्चन स्टूडेंट ने जैसा बताया है सेम उसको ऐसे ही रिपीट करना, उसको हम पैराफ्रेजिंग बोलते हैं. सेकंड इज फोकसिंग. फोकसिंग इज लेट्स टॉक वन थिंग एट अ टाइम. लेट्स टॉक वन थिंग एट अ टाइम. लाइक फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट इज़ कंप्लेनिंग कि मुझे जो है पापा प्यार नहीं करते, मुझे नींद नहीं आती है, मैं खाना नहीं खा पाता हूँ. सो रिस्पॉन्डिंग लाइक कि वी विल टॉक वन एट अ टाइम, वी विल सॉल्व वन प्रॉब्लम टू वन पर्टिकुलर वन टाइम. सो दिस इज फोकसिंग. टारगेट विद फोकसिंग नेगुलेशंस. थर्ड इज रिफ्लेक्शन. Reflection is you sound really upset. You sound really upset. For example, students say, I studied hard but still failed. So the response, that sound really disappointing and frustrating for you. So this is you sound really upset को उसी तरीके से रिस्पॉन्स करना. Next is empathy. Empathy is I can feel what you are saying. So जो तुम कह रहे हो उसको मैं फील कर रहा हूँ. For example, a friend loses job. ठीक है, तो इसका एम्पैथिक रिस्पॉन्स क्या आएगा? I can imagine how stressful and scary this must feel for you. So ये जो है एम्पैथी
से रिलेटेड है. नेक्स्ट इज नॉन जजमेंटल एटीट्यूड. सो नॉन जजमेंटल एटीट्यूड इज आई वोंट ब्लेम. आई वोंट ब्लेम और लेबल यू. लेबल भी नहीं करूँगा. जैसे स्टूडेंट एडमिट कि आई चीटेड इन द एग्जाम. सो द रिस्पॉन्स इज आई एम ग्लैड यू शेयर्ड दिस. सो दिस इज द नॉन जजमेंटल. किसी को जज नहीं करना है. अगर किसी ने अपनी गलती बताई है सो यू शुड नॉट बी जजमेंटल. सिक्स्थ इज बिल्डिंग अ कनेक्ट. दिस इज अ रैपो बिल्डिंग. रैपो. You are safe here. You are safe here. For example, teacher uses warm tone, maintain eye contact, listen peacefully or patiently. So the student can say, I can talk freely to her. So these are the basic counseling skill. ये नेशनल इनिशिएटिव मनोदर्पण है. साइको सोशल सपोर्ट फॉर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग फॉर स्टूडेंट ड्यूरिंग कोविड आउटब्रेक एंड बियॉन्ड इसके टाइम पे आया था. सो ये जो है इनिशिएटिव किसका है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है. ठीक है. मनोदर्पण, इसको आपको याद रखना है. ठीक है. ये पार्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान का. ये क्या बेसिकली हॉलिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, डिजिटल सपोर्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, ऑनलाइन काउंसलिंग भी प्रोवाइड कराता है. इसमें टारगेट ऑडियंस क्या है? स्टूडेंट के लिए है, टीचर के लिए है. ठीक है. फैमिलीज़ के लिए है. की कंपोनेंट इज बेसिकली टेली काउंसलिंग, ऑनलाइन मॉड्यूल्स, वेबिनार, नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन. सो टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी है, यू कैन कॉन्टैक्ट. द केयर गिवर्स वेलबींग. सो दीज आर द केयर गिवर्स वेलबींग. सेल्फ अफर्मेशन है फॉर टीचर्स के लिए, लाइक I matter, I make a difference. So, I matter, I make a difference. Teaching is my craft. I am open to embracing change. I am capable and confident. So, these are the self-affirmation for teachers. And self-care toolkit is start fresh every day. ठीक है. Read a good book to relax. Connect with uplifting colleagues. जो आपको बढ़ावा देते हैं, ये नहीं कि जो आपको ड्रैग डाउन करते हैं. तो हमें किससे कनेक्ट होना है? अपलिफ्टिंग कलीग से. स्पेंड टाइम विद नेचर. ठीक है. फॉर हैविंग गुड माइंड और गुड मेंटल हेल्थ. प्रैक्टिस पॉजिटिव सेल्फ टॉक. पॉजिटिव सेल्फ टॉक को प्रैक्टिस करना है. ये नहीं कि नेगेटिव बात जो है वो सोचनी है. इट विल लीड टू नेगेटिविटी. सो द समरी एंड की टेक अवे. द कॉन्टिन्यूम. मेंटल हेल्थ इज अ डायनेमिक स्टेट मेंटेन्ड बाय मेंटल हाइजीन. सो मेंटल हेल्थ इज मेंटेन्ड बाय मेंटल हाइजीन. The active science of prevention. So this is the active science of prevention. The diagnosis, कैसे diagnose करेंगे? Early identification relies on observation से, reality contact से, impulse control से, अपना आपा नहीं खोना है, and emotional stability से, how emotional you are. So these are the diagnoses. The ecosystem is basically the effective support required, a tiered approach involving parents, teacher, counselor, administrator. So these are the administrator or the ecosystem that provides support for healthy mental health. Education is the manifestation or of perfection already in man. So this is the this is said by whom? Swami Vivekanand. Education is the manifestation of perfection already in man. So thank you so much. This is all about mental health and hygiene. I hope you guys like this. Thank you so much. If you like my channel, please do share, subscribe, comment. Thank you.